Hello, welcome all. I'm super excited today with this live on Real Freedom Model because today is very special for me as I always preach in my every masterclass, webinar, inner circle mastermind community, even for higher ticket clients. सबके बीच मैं हमेशा बात करता हूँ कि मी से ज़्यादा बड़ा है वी. So power lies in we. So V means collaborations, V means togetherness, V means family. So now today in this live, I want to declare that we are officially joining the Remax community. Remax मतलब ग्लोबल लीडर इन रियल इस्टेट सेल्स. सो रीमैक्स इंडिया के CEO Mr. Aditya Agrawal is here in my office and we are very happy to share the beautiful news, the wonderful thing which can change the complete trajectory of all our lives here onwards, because real estate is going to be the next big thing in coming years. And Remax के साथ join होने के बाद the V is getting bigger and bigger and bigger. Guess what? Remax के through you can now get my consulting and references if you want to buy property anywhere on the planet. Isn't it exciting? So I am with super excitement. Let us meet Aditya ji Agrawal. Yeah, Hello. hi. Yeah, hi, this is Aditya Agrawal from Remax, and I welcome you all. This is a fantastic opportunity. I guess real estate is something which is in between everybody. Everybody understands this, everybody is excited for real estate, and everybody want to participate in real estate. And we are, as India, we are growing like anything. Everybody knows this. Our economy, everything is amazing. So Remax is contributing huge. Remax is the world largest real estate broking network. More than 9,000 offices we have, 110 countries presence with more than 150,000 agents working for us. And now in India, I'm proudly says partnering with Mr. Sandeep ji. I guess this will become more bigger than ever. So I really want you to participate, to discuss more about the opportunity. I guess now we have the complete planet wherein we can discuss real estate, we can deal with real estate, we can participate into real estate in any vertical of real estate. So आई गेस आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका मैं वेलकम करता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को जितना ज़्यादा आप यूज़ कर पाएँ थ्रू संदीप जी. एंड नाउ वी हैव अ प्राउड पार्टनर संदीप जी, जो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे मुहिम को आगे लेके चलेंगे. सो आई वेलकम Aditya ji, I have a quick question to you. What do you think about Indian real estate, especially post-COVID? Can you give your thoughts on this? यस. सो बहुत इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन किया है अबाउट इंडियन रियल एस्टेट. इंडियन रियल एस्टेट के नंबर्स सबके सामने हैं. मैं फिर भी शेयर करता हूँ कि 2020 के पहले की जो एक टेंटेटिव प्रोजेक्शंस थे कि हम किस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, कुछ 120 बिलियन डॉलर के आसपास की हमारी इंडस्ट्री थी 2017 में, जो लोग 2020 तक एस्टिमेट थी लगभग 250 बिलियन, 2025 तक लगभग 650 बिलियन, और बाय 2030 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड थी. लेकिन जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, जो 2025 का टारगेट है वो 2024 में पूरा हो जाएगा, लगभग $650 बिलियन का. एंड जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने 2030 तक प्लान करी है या एस्टिमेट की है, वो 2028 तक हो जाएगी इंडियन रियल एस्टेट. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो ग्रोथ है इंडियन रियल एस्टेट का, वो एस्टिमेशन से ज़्यादा तेज जा रहा है. सेकेंड, जो ग्लोबल अट्रैक्शन है इंडियन सिस्टम के लिए, इंडिया में आने के लिए, जितनी ज़्यादा कंपनीज इंडिया में आती हैं उतना रियल एस्टेट को वो आगे लेके जाती हैं. और जिस तरीके से पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया को देख रही है, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट अकेली एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका सबसे पहला बेनिफिट तो रियल एस्टेट को ही मिलने वाला है. तो मुझे लगता है कि इंडियन फ्यूचर, रियल एस्टेट फ्यूचर इज़ अमेजिंग. एंड नेक्स्ट 10 ईयर्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको. लास्ट 75 ईयर्स के अंदर जितना भी डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हुआ है, अगले 10 साल में उसका 3 फोल्ड होने जा रहा है. जिस लेवल की ग्रोथ, जिस लेवल के रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिस तरीके की नई कंपनीज, नए लॉन्चेस, नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जो ग्रोथ एस्टिमेटेड है वो लास्ट 75 ईयर्स की जो ग्रोथ है
उससे 3 गुना ज़्यादा ग्रोथ अगले 10 साल में हिंदुस्तान में रियल एस्टेट में होने जा रही है। सो आप उसका पार्ट बन सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। मैं और एक्साइट हो गया हूँ कि वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस इन इंडिया, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इंडिया विथ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, बहुत सी चीज़ें हो रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। सो रियल इस्टेट के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस here onwards. And one more question to you, Aditya ji. What do you think about Pune as a real estate destination? पुणे मार्केट को लेकर मार्केट में बहुत सारे अलग अलग आपको बातें मिलेंगी करने को। हिंदुस्तान पे अच्छी बात क्या है कि हर 100 किलोमीटर पे ग्रोथ होती है, हर 100 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ बदलता है। तो पुणे मार्केट को अगर हम देखा जाए तो हर लिहाज से पुणे इज़ दी बेस्ट डेस्टिनेशन इन आवर कंट्री। हर लिहाज से, कनेक्टिविटी वाइज देख लीजिए, लोकेशन वाइज देख लीजिए, टेम्परेचर मौसम के हिसाब से देख लीजिए, जो क्या बोलते हैं, जैसे अर्थ को एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न देता हूँ कि बहुत सारी कंपनियाँ दिल्ली में या नॉर्थ में ऑफिस नहीं खोलती जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अर्थ का जो प्रॉब्लम है। लेकिन जो पुणे का जो टेरिटरियल है, जो कैलकुलेशन है, वो बहुत ही फेवरेबल है। आईटी डेवलपमेंट हो गया, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, चाहे वो किसी भी तरीके की ग्रोथ है। इनफैक्ट कल की न्यूज़ है कि टेस्ला ने जो अपना ऑफिस रजिस्टर कराया है वो पुणे में कराया है। सो पुणे मार्केट आई गेस इंडिया के हमेशा टॉप 3 मार्केट्स में से एक रहेगा। सो मुंबई, पुणे एंड बैंगलोर, ये 3 मेजर मार्केट्स हैं जो रियल एस्टेट को ड्राइव करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रोथ में बहुत मेजर पार्टिसिपेट करते हैं। एंड टॉप 5 मार्केट्स आर से दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद एंड बैंगलोर। ये 5 शहर हैं जिसमें से टॉप 3 में हमेशा पुणे रहता है। सो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ऑफ पुणे इज़ अमेजिंग। एंड मुझे लगता है कि हर एक इंटरनेशनल ग्रोथ या डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, किसी भी एक इंटरनेशनल कंपनी की बात करते हैं जिसको इंडिया में आना होता है, तो उसके प्रोस्पेक्टिव में 2 ही एंगल हैं। या तो वो बैंगलोर हैदराबाद वाले बेल्ट को चूज़ करते हैं या फिर वो मुंबई पुणे वाले बेल्ट को चूज़ करते हैं। सो आपके लिए पुणे समथिंग की जो रियल एस्टेट में हिंदुस्तान में अगर देखा जाएगा तो हमेशा टॉप 2 टॉप 3 डेवलपमेंट्स के एंगल से ही देखा जाएगा। दैट्स ग्रेट। और जो मैं कई हफ्तों से कह रहा हूँ, रियल फ्रीडम, व्हाट डज इट मीन? रियल फ्रीडम स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग। तो बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि हाउ कैन यू से दैट, स्टॉक मार्केट है, पेपर असेट्स है, क्रिप्टो है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम रियल इस्टेट से कैसे मिलेगा? हम लोग 1 या 2 प्रॉपर्टी ले नहीं पाते हैं, कैसे क्या हम रियल इस्टेट के रेंटल के थ्रू फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं? सी, इट्स नॉट शाइनी टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट। क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा बात होती है, दैट्स वेयर वी कमिट मिस्टेक। एज आदित्य जी ने अभी बताया कि कितना बड़ा मार्केट होने जा रहा है, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। रॉबर्ट कियोसाकी है, ग्रैंड कार्डॉन है, आप कोई भी बड़ा मिलेनियर बिलियनियर ले लीजिए, ही ऑलवेज इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट बिकॉज, सिंपली बिकॉज रियल इस्टेट इज कंट्रोल्ड बाय यू। कंपैरेटिवली रियल इस्टेट के साइकिल्स जो है वो एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट और मेनी अदर मार्केट साइकिल से स्टेबल है कंपैरेटिवली, एंड यू कैन लिव इन इट, यू कैन रेंट इट, सो देर आर मेनी एबल्स अटैच टू इट। तो जो मेरी कम्युनिटी है जो स्मार्ट बनते जा रही है रिगार्डिंग रियल इस्टेट, उनको और एक्साइट करने के लिए ये एक बड़ा कदम हमने लिया है। अब हमारा जो वी बना है, मी के जगह वी, हमारा पावर कई गुना बढ़ गया है। अभी रीमैक्स के थ्रू आप पुणे में नहीं, लखनऊ, चेन्नई, अयोध्या, नॉर्थ ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कहीं भी प्रॉपर्टी लेना चाहो, सो यू कैन गेट इट विथ ग्रेट ट्रेनिंग्स एंड बहुत ट्रेंड पूरा नेटवर्क है। सो वी आर सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस जर्नी। एंड फाइनल क्वेश्चन टू आदित्य जी is what do you think about financial freedom and why financial freedom is important to all of us and how real estate investment can help it? Any thoughts on this? सो फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत बड़ा वर्ड है। मतलब सबकी डेफिनेशन ही अलग है फाइनेंशियल फ्रीडम की। किसी को लगता है कि मैं ठीक काम करके पैसे कमा रहा हूँ तो मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम है, किसी को लगता है कि मैं घर बैठ के पैसे कमा रहा हूँ तो मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम है। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक बार इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इनकम के लिए पार्टिसिपेट करती है। आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो आपका डेली प्रोफेशन है, डेली काम है। पर फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि एक ऐसी इनकम जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरी कर पाए। वो एक ऐसी इनकम हो जिस पे शायद आपके एफर्ट्स एक बार लगें और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आएँ, और वो सिर्फ रियल एस्टेट दे सकती है। तो रियल एस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल फ्रीडम में, आप दुनिया में किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडिविजुअल उठा के देखेंगे,
वो अल्टीमेटली रियल एस्टेट एक ऐसा एंगल होता है जिस रीज़न से वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाता है। बाकी वो उसके लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बिजनेस नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, जॉब्स आएंगी जाएंगी, वो सब चलता रहेगा। पर जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसके जो रिटर्न्स आ रहे होते हैं वही फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सोल रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई इंसान काम करता है या सोचता है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, तो उसको इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है रियल एस्टेट में। और ये एक जर्नी है, ये एक दिन में नहीं आएगी। इट विल टेक सम टाइम, 3 years, 4 years, 5 years, 7 years. Continuous investments in real estate will give long term financial freedom. Thank you, Aditya ji. Thank you for your time and this courtesy visit. See you there. Thank you all for watching. Thank you. Bye bye. Take care.